Good morning student. In the previous video we discussed about the properties of the ionic compounds. The properties are as number one physical nature. So these are solid and these are solid due to strong force of attraction among the positive and negative ions, and they are brittle. That means on hammering or on applying pressure they break down into small pieces. Melting point and boiling point. Due to high force of attraction, lot of energy is required to overcome this force, so they have the high melting point and boiling point. Solubility, they are soluble in water, and we can say they are soluble according to like dissolved like theory. They are soluble in water because water is a polar solvent and they also made up of ions. That's why they are soluble in the water, but they are insoluble in non-polar solvent or organic solvents, for example kerosene, petrol, alcohol, etc. Conduction of electricity, they are made up of ions, but ions are fixed, can't move here and there in solid state. So in solid state they are not they cannot conduct the electricity, but in the molten state ions become free. In the water solution ions also become free. That's why in molten state or in the water solution state they are good conductor of electricity. Now come to the exercise. Write the electron dot structures of following. So be careful, this is different from the diagram. इलेक्ट्रॉन का जो डायग्राम आप 9th क्लास में बनाते थे उससे थोड़ा डिफरेंट है ये, और इसमें हम क्या करते हैं, देखिए वी विल प्रिपेयर ओनली द आउटर लाइंस, दैट इज ओनली आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को हम बनाएंगे. शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड MgO बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो जैसे ये एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं आए तो पूछ लीजिएगा. Na2O में 2 Na रहेंगे और O रिसीव करेगा 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच वन Na के साथ. MgO में मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा. इन दिस वे यू विल प्रिपेयर देयर इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला. What are the ions present in these compounds? So in the Na2O ions are Na plus and O minus 2, but in a magnesium oxide Mg plus 2 and O minus 2. Why do ionic compounds have high melting point? So this answer is clear. That they have high force of attraction among the ions, so lot of energy is required to overcome this force to make the ions free. That's why they have the high melting points. Write the electron dot structure. ये छूट गया question. By for sodium, oxygen and magnesium. As I already told you, in electron dot formula we prepare only the outer orbital electron. So if we are going to prepare sodium ion, it becomes sodium. Its configuration is 281. Only we can give the dot structure. This is the Lewis concept. We give only the dot for the indication or for the presentation of electron. So this is the electron dot formula for the sodium. And next for the write the oxygen. So oxygen has 6 electron outermost orbit. So this is the oxygen. Next magnesium, it has 2 electron in the outermost orbit. So this is the magnesium. If you are going to prepare their ions, it lose 1 electron, so it form Na positive. This is electron dot formula for Na positive. It receives 2 electron to complete the octet, so it's now outer orbit get 2 more electrons, so it become 8. So we will represent like as magnesium lose 2 electrons, so we will show its electron dot formula in this way, right? So be careful about it. In electron dot formula of different atoms and ions we will show only the electrons present in the outermost orbit. पॉजिटिव आयन में आउटरमोस्ट ऑर्बिट रिमूव हो जाती है, इसलिए हम आउटर ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन शो नहीं करेंगे, केवल साइन लगाएंगे. जो भी चार्ज उस पर आ रहा है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड, और जो निगेटिव आयन बनाएंगे उसमें 8 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन आपने एक्स्ट्रा लिए हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो नंबर ऑफ यूनिट चार्ज लिखे जाएंगे, जैसे कि O-2 में आपने लिखे हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज अकरेंस ऑफ द मेटल्स. हमारा जो अर्थ क्रस्ट है, ऊपर वाला जो कवरिंग है जिसे आप सॉइल बोलते हैं, मेटल्स इसी में प्रेजेंट होते हैं. एक्चुअली दिस अर्थ क्रस्ट इज सिलिकेट्स, SiO4. ठीक है, SiO4 -4 -2 दीज आर द डिफरेंट, दे हैव डिफरेंट चार्जेस. यू विल स्टडी इन द हायर क्लासेस. बट जो निगेटिव आयन है वो सिलिकेट है, ठीक है, और जो पॉजिटिव आयन है वो मेटल्स है. तो ये जो आपका अर्थ क्रस्ट बना हुआ है ये एल्यूमिनियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, मैग्नीशियम सिलिकेट, आयरन सिलिकेट, इस तरीके से डिफरेंट मेटल्स के सिलिकेट्स हैं. ठीक है,
सो जो अर्थ क्रस्ट है, दिस इज द सोर्स ऑफ द मेटल्स. इट कंटेन्स सो मेनी मेटल्स in the form of silicates, or along with that chloride and chloride, sodium chloride, magnesium chloride, etc., and other compounds, sulfate, carbonate also present along with the silicates. At some places these minerals present in a very high concentration, so so we dig out from that, or we mine them from there, and the metal can be profitably extracted from it. These minerals are called the ores. So every ore will be the mineral, but every mineral cannot be ore. Is it clear? So remember this thing again, that is अर्थ क्रस्ट से ही हमें मिलता है. लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, सिलिकेट्स जो होते हैं वो बिल्कुल नॉन रिएक्टिव होते हैं. सो वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन द मेटल फ्रॉम द सिलिकेट. सो अदर देन द सिलिकेट, कार्बोनेट, ऑक्साइड्स एंड फॉस्फेट्स एंड क्लोराइड्स, अदर फॉर्म में जब मेटल प्रेजेंट होता है तब हम उसको वहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने का. नाउ एक्सट्रैक्शंस ऑफ द मेटल. एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करने के लिए, या मेटल इन ओर से एक्सट्रैक्शन को हमें निकालने के लिए, हमारे पास सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं और हम उन्हें केमिकल स्टेप्स कहते हैं, वो करने जरूरी होते हैं. पहला स्टेप होता है, जो भी आपका ओर है वो रॉक की फॉर्म में है तो उसको बॉल मिल्स में बिल्कुल पाउडर क्रश कर दिया जाता है. सेकंड होता है, उसमें से मिट्टी निकालना है हमको, यानी कि जो सॉइल पार्टिकल्स है उनको निकालना है. दिस इज नोन एज ए कंसंट्रेशन ऑफ द ओर. थर्ड स्टेप होता है कि हम ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं, बिकॉज इट इज वेरी इजी टू रिड्यूस द metal oxide into the metal. So next step, third step is to convert all types of ore into the metal oxides or oxide ore. Next step is reduction of these oxides into respective metals. So these are the important steps. One by one we study these steps first and then we apply them, right? So these steps are, number one, क्रशिंग इन द बॉयल मिल्स. सो इट इज़ वेरी क्लियर. बॉयल मिल्स में एक बहुत बड़ी सी वो होती, एक बहुत बड़ा सा कंटेनर होता है, उसमें बॉल्स के साथ उनको हिलाया जाता है. तो ये आयरन बॉल्स होते हैं. तो बॉल्स, ये जो आपका ओर है ये पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है, दे नोन एज ए बॉल मिल्स. ठीक है. उसके बाद हम कंसंट्रेशन करते हैं. कंसंट्रेशन के हम जनरल में जो मेथड यूज करते हैं 10th लेवल पर, जो आपके को यूज होंगे, वो नंबर 1 मेथड है मैग्नेटिक सेपरेशन. मैग्नेटिक सेपरेशन उन मेटल्स, उन ओर्स के लिए है जिसमें या तो इम्प्योरिटी और या आपका ओर, दोनों में से किसी के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो, यानी दे स्टिक विद द मैग्नेट. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आयरन के जो ओर्स हैं, हेमेटाइट एक्सेट्रा, उनका सेपरेशन, उनका कंसंट्रेशन इस मेथड से किया जाता है. थर्ड मेथड है फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड. कंसंट्रेशन का जो फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड है, बहुत सिंपल वे में इसको समझ लीजिए. वी विल टेक अ सिंपल कंटेनर. अगर हमारा सल्फाइड ओर है तो हम इस मेथड को यूज करेंगे, क्योंकि सल्फाइड ओर की एक खासियत होती है कि उस ओर जो है वो पाइन ऑयल में वेट होता है, और जबकि जो इम्प्योरिटीज हैं वो वाटर में वेट होती हैं. तो हमने क्या किया, वाटर लिया, ये एयर ब्लोअर है, यहाँ से हम एयर ब्लो करेंगे, और इसमें हमने 1/3 पाइन ऑयल डाला, और ये हमारा वाटर है. जब हम इसमें ओर डालेंगे क्रश करके पाउडर बना के, तो ओर पाइन ऑयल में वेट होगा और इम्प्योरिटीज वाटर में वेट होंगी. जब आप एयर पास करेंगे तो पाइन ऑयल में भीगा हुआ ओर ऊपर फ्लॉथ, झाग बनाएगा, और इन बड़े बड़े स्पून से इसको हम सेपरेट आउट कर लेते हैं. सो दिस इज द कंसेप्ट. दिस मेथड इज यूटिलाइज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ द सल्फाइड ओर. मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड इज यूज्ड टू कंसंट्रेट the ore which has magnetic property or impurity having the magnetic property, right? And third is gravitation method. तो gravitation method में हम water के साथ उसको वॉश करते हैं. इस तरीके का भी होता है, बहुत तरीके के मेथड हैं इसमें. तो यहाँ से हम ओर को वाटर में भिगो के डालते हैं, तो जो हमारे हैवी पार्टिकल्स हैं ओर के, वो इनमें जमा हो जाते हैं. गोल्ड के लिए ये मेथड यूज होता है, और जो हमारी इम्प्योरिटीज हैं वो वॉश आउट हो जाती हैं. ठीक है. यहाँ से हम इन पार्टिकल्स को सेपरेट आउट कर लेते हैं. तो इन दिस वे देयर आर सो मेनी मेथड, ओनली 3 मेथड्स आर डिस्कस हियर, दैट इज वॉशिंग विद वाटर, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड एंड ग्रेविटेशनल सेपरेशन मेथड, जो आपका वॉशिंग में ही आएगा, और 1 इज मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड.
So magnetic separation method used for those which have magnetic property, fourth flotation for sulfide ore, and जो आपका ग्रेविटेशन मेथड और वाटर वॉशिंग विद ग्रेविटेशन है वो हम यूज करते हैं इफ योर ओर हैविंग वेरी हाई डेंसिटी. थैंक यू.